Assalamu alaikum. Good evening to you all. Thank you very much for your kind introduction, Dr. Divakar. And I want to congratulate and thank the Indian Muslim Association for conducting such health awareness talks. This is really very nice, and it will benefit the community and people who are having some free time on Fridays or something. This is a very great activity. I would like to. I have been told by the organizers of IMA that sometimes I may have to speak in Hindi, Urdu also, because this is a very common situation we are facing this in the hospital and in our practice. Chronic kidney disease is very, very, very common, and around in the world, you will not believe that around 800 million people are suffering from this disease. And a lot of money is being spent on dialysis and transplantation of the kidneys. And this the commonest transplant you will hear that people get their kidneys transplanted because of this advanced kidney disease. So I will just tell you a little brief about what is the kidneys, how they are, and how Allah has provided us two kidneys so that one gets spoiled. You can live your life with one kidney also. So there are so many common diseases which cause this kidney problem, which I will just tell you. The next slide, I want to show you what does my talk will comprise of mainly what is the how much is the burden of CKD in the world, and what are the causes of this chronic kidney disease, and how we clinically evaluate and we diagnose these cases, and how to prevent this and how to manage these cases. This is just a brief summary I'm telling you, and I will speak to you in brief. The unit of each kidney is a small structure, very on both sides of our we call it this area lumbar area. So it's a retroperitoneal structure, and each kidney has around, you will be surprised that around 1 million nephrons are there. Each unit of kidney is called a nephron. The function of the nephron is to remove all the bad stuff from our body, the dirty, the waste. जो हमारे खाने में इसमें जो कुछ भी ग़िज़ाएं हम लेते हैं, तो उसमें से जो है गलाज़त को जो है साफ करना, फिल्ट्रेशन करना, वो काम है किडनी का. तो किडनी में एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं, लेकिन जैसे आदमी की एज एडवांस होती है उसमें जो है वो कम होते जाते हैं नेफ्रॉन. तो ये एक बात को हमको जहन में रखने का है कि जो है ये किडनी की बीमारियां क्यों हो रहे हैं और उसका क्या क्या सबब है. और आदमी जो है ख़ास तौर पे ये हमारे ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डेजर्ट एटमॉस्फेयर होने की वजह से डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो है आदमी पानी के कम पीने का है. पानी आप किडनी को पीते रहे तो किडनी का फिल्टर जो है बराबर काम करते रहेगा. this all everybody has to keep this in mind that we are living in a desert climate. तो उसके लिए हमको जो है पानी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए. कम से कम 1 से 1.5 लीटर मिनिमम जो है पानी इंसान को पीना चाहिए. अच्छा, तो ये जो किडनी है, जो आजकल जो आम बीमारियां हैं जो इसका असर पड़ता है किडनी के ऊपर, जो दुनिया में पूरे जो है मेन जो है उसमें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं वो है, और डायबिटीज है. दिस आर द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ किडनी डिसीज. ये ज्यादातर जो लोग आजकल जो हमारे पास आते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल को आते हैं, दिखाते हैं, तो लोगों को जो है अंडरलाइंग जो बीमारी रहती है वो है हार्ट, उनकी जो है हार्ट हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसका बराबर उनको अवेयरनेस नहीं रहता कि हमको, क्योंकि साइलेंट रहता है. ब्लड प्रेशर के लिए कोई सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है, उसमें जो है आदमी बगैर सिम्टम्स के रहता है. वैसे ही डायबिटीज भी जो है लोगों को पता ही नहीं रहता कि इनकी शुगर बढ़ी हुई है. तो ये दो बीमारियां बहुत आम हैं दुनिया में, और उनकी दे आर द मेन रीजन फॉर कॉजिंग दिस क्रोनिक किडनी डिसीज. इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं हम क्रोनिक किडनी डिसीज, और अक्यूट किडनी इंजरी भी इसको जो होता है बोलते हैं, क्या है ये चीज. तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ कि abnormalities ऑफ किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 3 months. ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है केडी आईगो, किडनी डिसीजेस improving global outcomes. This is an organization which is based in Belgium,
and they are trying to help people all over the world to improve the outcomes from these diseases. So they are थोड़े थोड़े दिनों में जो है इनकी मीटिंग होती है, उस पर जो है लोग गाइडलाइंस हमको देते हैं कि ऐसा कीजिए इलाज, ऐसा करिए, ये एडवाइस दीजिए। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम मिलना चाहिए। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये 3 महीने से बढ़ के अगर आदमी का किडनी का फंक्शनिंग जो है अगर अब नॉर्मल रही तो इट इज कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो उसमें क्या चीजें हम देखते हैं जो इसमें जो मेनली एक हमारा जो गलाजत है, जैसा कि में हम जो यूरिन में जो पास करते हैं उसमें मेनली इट कंटेन्स यूरिया, अमोनिया और सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। कोई जो है चीजें होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो जो है यूरिन के जरिए से हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है उसकी, अमाइनो एसिड की, खाने जो हम खाते हैं उनका जो भी एंड प्रोडक्ट्स होता है वो जो है किडनी के जरिए से साफ होता है, फिल्टर करता है वो, और जो इंपॉर्टेंट चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। मैं एक डायग्राम बताना चाहता था, वो पता नहीं जो है मिस हो गया है वो। तो नेफ्रॉन के दो चीजें होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक जो है उसको ये है स्ट्रक्चर, देखिए इसको जो है ये यूनिट है किडनी का। इसमें जो है एक आपको बताया कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। तो इसका जो 2 स्ट्रक्चर मेनली होते हैं। एक तो जो है इसको जो है हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये जो है ग्लोमेरुलस है, और बाकी ट्यूब्यूल्स है, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये। तो ये जो है पूरा ये फिल्टर का काम जो करता है, ब्लड वेसल आती है इसमें, एक एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, जो जिससे पूरा खून के सर्कुलेशन आता है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, और इफेरेंट आर्टीरियोल से जो खून वापस जाता है। उसके बाद ये जो जो कुछ भी चीज फिल्टर होती है ये ट्यूब्यूल्स में आती है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसका लूप ऑफ फिनले है, उसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसका कलेक्टिंग ये। तो ये जो पूरे जो होते हैं इनका लोकेशन जो है किडनी में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ऊपर का जो सतही एरिया होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर के हिस्से को मेडुला बोलते हैं। तो ये मेनली ये स्ट्रक्चर जो है ये कॉर्टेक्स में होते हैं। जो जो ये स्ट्रक्चर होता है ये 1 मिलियन करीब नेफ्रॉन्स होते हैं ईच किडनी में, एक हर किडनी में। और जैसे जैसे आदमी का एजिंग होती है प्रोसेस, उसमें जो है ये कम होते जाते हैं। तो इस वास्ते हम ये जो है पुराने जमाने में एक एक ये था, एक ट्रेंड था कि हम जो है फिल्ट्रेशन रेट से जो है आदमी का असेस करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किडनी डिसीज का, कि कितना उसका जो है फिल्टर कर रहा हूँ पर मिनट, और बॉडी सरफेस एरिया के लिहाज से कितना जो है यूरिन का। तो उसके स्टेजेस हैं। लेकिन ये जो है एजिंग के में इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि हर आदमी का आपको बराबर उतना, यंग आदमी का जो किडनी का फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो ज्यादा होता है। एक एल्डरली आदमी है, 70 का है, 65 के ऊपर है, तो उसका जो है 45 को भी हम जो है उसको वी कैन कंसिडर इट एज नॉर्मल, बिकॉज there is nephron loss. As you grow old, your nephrons will be lost. तो उससे जो है थोड़ा सा उसको आप, बिकॉज यूर फिल्ट्रेशन कैलकुलेटेड जो है आप थोड़ा कम है, तो आप अरे मेरे को किडनी फेलियर है बोल नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलना है। ये जो है नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको बता। तो ये जो है इनका काम क्या है, फिल्टर करना है ग्लोमेरुलस का, और ये ट्यूब्यूल्स का काम है रीअब्सॉर्ब करना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉडी में, हमारे प्रोटीन्स हैं बाजू पर, तो जो अगर वो जो है पूरे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जिस इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसम में, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो है रीअब्सॉर्ब होते हैं। और जो वेस्ट के चीजें होती हैं वो पूरे कलेक्टिंग डक्ट से पूरा यूरिन में, ब्लैडर में जाके यूरिन से निकल जाते हैं जिसम के बाहर। तो ये काम है किडनी का फिल्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमको 2 किडनीज दिया है कि जो है इनका काम बराबर चलते रहे। और पानी को जो है हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसका फंक्शन क्या है, ये चीजों का, ये जो ग्लोमेरुलस है और जो ट्यूब्यूल्स, इनका काम क्या है। काम ये है कि हमारी बॉडी में जो भी खलीज चीजें पैदा होते हैं उनको वो करना। एसिड बेस हमारी बॉडी में जो है हमको हमेशा बॉडी, हमारा पीएच जो है अल्कलाइन साइड के ऊपर रहता है, एसिडिक साइड के ऊपर नहीं रहता। अल्कलाइन साइड के ऊपर मेंटेन करना उसको, वो काम है किडनी का। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करने का है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स पैदा करता है किडनी, जो है आपके जैसा कि एरिथ्रोपोइटिन है। हमको जो है हम देखते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के लोगों को जो एनीमिया हो जाता है। क्यों होता है? इस वास्ते होता है कि एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी में प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है ये क्रॉनिक डिसीज में।
तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो वैसे ही और भी जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी है, कैल्शियम है, जो बॉडी में हमारे बोन्स के लिए बहुत अहम है, वो भी जो है पूरा उसका मेटाबॉलिज्म पूरा किडनीज में होता है। किडनी इज इम्पोर्टेंट फॉर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, उसके एहतियात करना चाहिए। हमेशा ये चीज़ का ध्यान में बात रखिए आप लोग। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ यू क्लासीफाई ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये देखिए फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है जो होता है, जो ग्लोमेरुलस में जो स्ट्रक्चर में बताया आपको मैं ग्लोमेरुलस से, तो वो जो है नॉर्मल वो लोग बोलेंगे 90 है, लेकिन ये जो है दिस इज फॉर ए यंग पर्सन अराउंड 40। ये बॉडी सरफेस एरिया है ml/min/1.73 मिलीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद जो है 60 to 89 जो है ये जी ग्रेड 2 है, इसको रीनल इंपेयरमेंट बोलते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट फॉर एल्डरली पर्सन वी डोंट कैलकुलेट लाइक दिस। और उसके बाद जी 3A जो ग्रेड है वो माइल्ड टू मॉडरेटली डिक्रीज है, ये 45, इसमें GFR जो है ये जो कैलकुलेट करते हैं ये जो है 45 टू ml है, ये तो अप टू 59 ml। लेकिन हमारे पास जो कट ऑफ पॉइंट रहता है 60 रहता है, 60 के नीचे रहा तो वन शुड बी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। For a young person, if his EGFR becomes less than 60, he has to be bothered and concerned about this, why it is going down। और उसके अलावा मैं आपको अभी इसके वजूहात भी बताऊंगा क्यों होता है ये ऐसा, क्यों आखिर EGFR कम कम क्यों हो रहा है, फिल्ट्रेशन जो करना है काम, फिल्टर का जो काम करना है वो कम क्यों कर रहा है किडनी, उसके वजूहात भी हैं। उसमें सबसे अहम मैं आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है। उसके अलावा और कई बीमारियां हैं जो आपको मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद जो है ग्रेड 3B में जो है 30 to 44। उसके बाद सीवियरली डिक्रीज जो है 15 to 29 है। और अब ये बिल्कुल ही जो है जब लास्ट किडनी फेल होना शुरू हुआ था, बिल्कुल ही एंड स्टेज रिनल डिसीज बोलते हैं उसको हम लोग, ब्लड उसका आदमी का मशीन से पास होकर वेन के जरिए वापस करते हैं। तो वो जो है उसको उसका उसमें जो है हम लोग वो जो शंट बोलते हैं उसको शंट बनाते हैं आर्टरी और वेन में लगा के, ताकि एक आर्टिफिशियल किडनी से सफाई होती है पूरे खून की। नहीं वरना क्या होता कि जिस्म में जब ये मादे रहेंगे, खराब मादे हमारे जिस्म में, ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, दे कॉज सिम्टम्स ब्रेन में जो है हमारे कंफ्यूजन, आदमी को जो है ड्राउजीनेस, ये जो इस किस्म के सिम्टम्स जो है होते हैं। तो किडनी का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि खून को साफ करे, ये करे। तो जो हमारे ये जो है, और एक बात जो बहुत अहम है कि किडनी में जो है ये प्रोटीन जो है नहीं जाना चाहिए। एक नॉर्मल जो है लेस देन 20 मिलीग्राम 24 आवर्स में इतना एल्ब्यूमिन को लॉस होता है नॉर्मली। तो लेकिन अगर अगर ये बढ़ते जा रहा है A1 A2 A3 ये जो है, अगर ये तो जो है कि एक स्टेज आता है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें 2 ग्राम यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है, एल्ब्यूमिन का लॉस। तो उस वो जो है सीवियर है। वैसे ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, जो कॉमनेस्ट कॉज है किडनी फेलिंग का, उसमें क्या होता है कि हम लोग ये यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो देखते हैं, और उसमें ये इससे असेस करते हैं हम कि कितना एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है। फिल्टर यूरिन जो है, क्योंकि किडनी के जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो कम हो जाता है, उसको स्कीमिया खून की कमी की वजह से ब्लड ब्लड में जो है फाइब्रोसिस होता है, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड पैथोलॉजी है। मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता आप लोगों को डिटेल में, ज्यादा बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, उससे होता है। और किडनी में जो है ये माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है। शुरू स्टार्ट जो है 20 30 40 50 300 तक के जो है मॉडरेटली इंक्रीज होते हैं, उसके ऊपर रहा तो बहुत सीरियस बातें होती है, कि आदमी का जिस्म से प्रोटीन निकल जा रहा। तो ये बहुत ही अहम तगजिया है इंसान का, जो है न्यूट्रिशन है प्रोटीन, जो यूरिन स्मॉल बॉडी जो है हमारी, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको फिल्टर करके लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है। तो ये बीमारियां हैं, मसलन के ग्लोमेरुलर डिसीजेज हैं, कई बीमारियां, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं हम लोग, बीमारी है जिसके कॉजेज जो है आजकल आपको एक बीमारी जो बहुत आम है यहाँ पे दुनिया में बताना चाहता हूँ, उसका नाम है ऑटो इम्यून डिसीजेस। जैसे कि SLE है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है जॉइंट की बीमारियां हैं, बहुत कॉमन है ये। हर तीसरे वीमेन में हैव दिस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो ड्यू टू SLE।
तो ये बहुत कॉमन है, इनमें जो है ये पैथोलॉजी होती है ग्लोमेरुलस में, उसकी वजह से दे विल सफर, उनका जो है प्रोग्रेसिवली जो है डिटीरियोरेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और दे रीच प्रॉब्लम। और बाज बीमारियां हैं जो पैदाइशी हैं, कंजेनिटल हैं, जैसा कि सिस्टिक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बोलते हैं, जिसमें जो है बाज अनफॉर्चुनेट ऐसे फैमिलीज हैं, मैं जानता हूँ बाज पेशेंट को मैं इलाज करता हूँ, कुवैत में भी हैं ऐसे, और हमारे भी लोगों में फैमिलीज में रन करता है ये, जिनको जो है जिनमें किडनी जो है रिप्लेस होकर पूरे सिस्ट्स के, जैसे कि बुलबुले बन जाता है किडनी, पूरा स्ट्रक्चर जो है किडनी जो है रिप्लेस बाय सिस्ट्स, तो उसको सिस्टिक डिसीज बोलते हैं। तो वो जो है एक स्टेज आता है जबकि जो है उनको जो है डायलिसिस करना पड़ता है, उसका फाइनली दे हैव टू हैव ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि इनकी किडनीज जो है काम नहीं करते, तो प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट हो जाते हैं, जैसे कि उम्र होती है इंसान की, तो दे लूज द किडनी फंक्शन एंड देयर किडनीज आर रिप्लेस्ड बाय सिस्टिक सिस्ट, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बोलते हैं, ये फेमिलियल डिसीज है और इसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो आप ये जो है कि पूरे ये आपको बता दिया मैं कि ये ग्रेड्स हैं GFR के, कि क्रोनिक डिसीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड एल्ब्यूमिनुरिया से लिहाज से, ये जो दो चीजें बहुत अहम होते हैं, हम जो यूरिन में टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्स क्या होता है, हाउ दिस क्या क्रोनिक डिसीज को छोड़ देंगे हम ऐसी, नहीं, इससे क्या होगा, इसके नुकसान क्या होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सीकेडी, क्या होता है नेचुरल हिस्ट्री में, क्या होता है अगर आप इलाज नहीं कराए, बराबर चीजों का ख्याल नहीं करे, ये बीमारियों का इलाज नहीं कराए, और शुगर का कंट्रोल नहीं करे, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं करे, उसका नतीजा क्या होता है, एंटीसीडेंटल कंडीशन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग किडनी फॉलोड बाय स्टेज ऑफ सीकेडी। क्या होता है, किडनी पहले किडनी डैमेज होता, उसके बाद डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, उसके बाद किडनी फेलियर होता है, उसके बाद एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसा कि हार्ट का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक्स है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है हो सकता है, और फाइनली डेथ। तो ये जो है, अभी किडनी जब फेलियर होता तो हम लोग रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं उसको। डायबिटीज इज नंबर वन, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज को जो है लोग बहुत आसानी से लेते हैं, कुछ भी नहीं है, क्या है शुगर जा रही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डायबिटीज इन कोर्स ऑफ टाइम, अगर किसी को 10-15 साल की डायबिटीज है और उसका बराबर इलाज नहीं कराए हैं, आजकल बहुत अच्छी दवाइयां आ गए हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट करने के लिए। SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं हम जिनको, बहुत ही वो जो है कि दे प्रोटेक्ट द किडनी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, that one has to treat diabetes. Don't take it easy, and you have to visit not once in a year, but you have to visit every doctor every 3 months and get updated your treatment for diabetes. This is very, 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 very essential to not to have the kidney get affected, because kidneys में जो है माइक्रो एल्ब्यूमिनिया से शुरू होता है, वो 40 से 50 ग्राम, 50 मिलीग्राम से जो है 100 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन लॉस होते जाता, तो उससे जो है इट डैमेजेस द किडनी। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हाइपरटेंशन, उसका ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में बोल रहा था मैं आपको कि दीज आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द, वो जाके किडनी में डिपॉजिट होते, जाके उसको किडनी डैमेज करते। तो ये क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, कई बीमारियां हैं जो होते हैं, और इन्फेक्शंस में बोला आपको, मलेरिया है, HIV है, हेपेटाइटिस है, BNC हेपेटाइटिस है, और ड्रग्स, कॉमन ड्रग्स जो लोग खाते हैं नहीं खाना चाहिए। थोड़ा दर्द हुआ है, ज्यादा से अगर आप खाते हैं तो पैराडॉल खाइए बस, लेकिन आप ये ब्रूफेन ऑल्फेन वगैरह को रूटीनली बहुत ज्यादा टाइम के लिए, महीनों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाज हर्बल मेडिकेशंस हैं चाइनीज वगैरह, तो बाज जो होते हैं दवाइयां जिनसे जो है नुकसान किडनी को, दे आर नेफ्रोटॉक्सिक दवा बोलते हो, जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये है, और एक आम बीमारी जो कुवैत में बहुत हमारे खासतौर पे इजिप्शियन पेशेंट्स बहुत आते हैं तवारी में, कैजुअलिटी में, तो उन लोगों को जो है किडनी स्टोन्स होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से धूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म गर्म मौसम है, तो उससे जो है उन लोगों के किडनीज में पथरी हो आती है, तो वेरी कॉमन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कैंसर है, ओबिसिटी है, और ये जो है लोगों का जो है स्मोकिंग है, ये इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज है, हेरोइन कोकेन लेते हैं बाद लोग, तो इन लोगों, और फैमिली हिस्ट्री में बोला था आपको कि जो है जैसा कि ये आपके जो है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो सोशियो डेमोग्राफिक में एज है मोर देन 60 ईयर्स में, तो नेचुरली डिक्लाइन भी होता है किडनी फंक्शन में,
तो नॉन वाइट रेस, लो इनकम, लो एजुकेशन, दीज आर ऑल फैक्टर्स विच। और ऑल्सो ये जो एक प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज ऑफ किडनी में क्या, एल्यूमिनिया जैसा बढ़ेगा और आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करेंगे तो ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस बोलते हैं, कि ब्लड वेसल जो रहते हैं वो थिक हो आते हैं, फाइब्रोसिस होता है उनका, होने के बाद बराबर जो है फिल्ट्रेशन का काम छोड़ता किडनी, तो उससे जो है डैमेज होता है किडनी हाई ब्लड प्रेशर में। हाइलिनोसिस बोलते हैं हम लोग उसको, वो पैथोलॉजी है। तो ये चीजों का आपको जो है ब्लड प्रेशर का इलाज, बहुत अच्छे इलाज है ब्लड प्रेशर के, नमक कम खाना है, नमक कम खाना, दूसरी दवाइयां हैं, तो एक बेहतरीन दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर के, जो इंसान को खाते रहा तो ये जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आप ये मत समझिए, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं ब्लड प्रेशर को, हम लोग वी कॉल देम एज साइलेंट किलर, बिकॉज उसे कोई सिम्टम्स रहना जरूरी नहीं है, बाद लोगों को हेडेक होता, बाद लोगों को नहीं होता। तो ये चीज का आप जहन में रखिए। तो ये रिपीटेडली एक्यूट इंजरी होते रहे, किसी को इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा, ट्रीट नहीं करे तो वो बढ़ के जो है नीचे का लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जाके अपर यूरिनरी पर जाता है, किडनी के ऊपर अफेक्ट करता है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं उनको, रिपीटेड इन्फेक्शन होने से किडनी छोटे हो जाते, बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो ये बात को जहन में रखना चाहिए कि यूटीआई का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो बहुत कॉमन होता है लेडीज में खासतौर पे। तो प्रेगनेंसी में इसमें बहुत उसका ख्याल रखना चाहिए। और मोटापा हर बीमारी का सबब है, हर बीमारी के लिए भी मोटापे में जो है बढ़ के कैंसर होते हैं, और हर बीमारी में जो है मोटापा एक वन ऑफ द फैक्टर इज ये रिस्क फैक्टर। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, स्मोकिंग है, हाई प्रोटीन डाइट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर। ये क्या होता है कि जैसा ही ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, एक किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है एसिड बेस बफर है, सिस्टम, बफर सिस्टम होते हैं उसको, जो आदमी के जिस्म के जो मिलीनियम है हमारा, जो अल्कलाइन रहना है उसको मेंटेन करने के लिए बराबर किडनी जो है वो सिक्रेट करता है, जो चीज़ गैर जरूरी है वो सिक्रेट करता है, तो वो करते रहता। तो ये पूरे जो है फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स जो आपको रखना चाहिए, ओल्ड एज है, मेल सेक्स है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, सीकेडी और एंड स्टेज रीनल डिसीज है, लो बर्थ वेट है, दीज आर ऑल, हाइपर यूरेसीमिया है, हाइपरफॉस्फेटीमिया है, और ये सब चीज़ों को जो है जहन में रखना चाहिए। और ये जेनेटिक है, एपॉल वन एलील्स जो है रहते हैं, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जहन में रखना है। अब ये देखिए कि मैं आपको बताया था कि वर्ल्ड में जो है 800 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसीज। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट एंड ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स, क्योंकि डायलिसिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। दो टाइप की डायलिसिस होती है, हेमोडायलिसिस एक बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। हेमोडायलिसिस इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे यूज मशीन इन दैट, and it's an artificial kidney, like you remove your blood and clean it and then put it back, और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कई, वो होते हैं। बहरहाल ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं जो बेयर करना पड़ता है। फाइनली वन हैज टू डू द ट्रांसप्लांट। United States में estimates of CKD prevalence based on a one-time measurement of serum creatinine recently placed the proportion of population in stage G3 or grade 4 CKD at 7%, almost 7%, 6.9%। तो ये जो है आप ध्यान में रखिए। ये और अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम, और EGFR लेस देन 60 ml per minute per 1.73 मीटर स्क्वायर। The prevalence of any CKD was 14%। देखिए आप कितना हाई है एक सोसाइटी में, कि 14 लोग 100 में से 14 लोगों को जो है CKD। Estimates in developing countries are less available, but most place the global population burden between 8% and 16%। यानी इमेजिन करिए आप, अफेक्टिंग नियरली 500 मिलियन एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड इन 2010। नाउ तो ये बढ़ गया, आप 800 से बढ़ गए हैं अब तो, प्रेजेंट जो है जो स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ कि ये इम्प्लीकेशंस क्या हैं। CKD इनॉम बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एडवर्स आउटकम्स इन पर्टिकुलर का, इसका खाली किडनी में डिसीज हो गई तो उसका असर जो है दिल के ऊपर पड़ता है, और जो है दिल का हार्ट अटैक वगैरह, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पड़ता है, उससे जो है इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। सिर्फ किडनी हम समझते किडनी क्या खराब होने से क्या होगा, किडनी से जो है उसका पूरे बॉडी के ऊपर बड़ा खराब असर पड़ता है। इंडिपेंडेंट एसोसिएशन GFR albuminuria with adverse outcomes has been demonstrated in general high risk and CKD population as well as separate geographic region. Albuminuria and glomerular filtration rate have been shown to be independent risk factors for acute kidney injury, gastrointestinal bleeding, thrombosis and infection। ये सब
जो है बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये मैं जल्दी जल्दी पास करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा वक्त दे सकूं मैं। तो ये जो है आपको अभी बताया था मैं, डिसीजेज बताया था मैं आपको कि भाई ये पूरे बीमारियां हैं ग्लोमेरुलर डिसीज में, मेनली डायबिटीज है, ऑटोइम्यून डिसीजेज हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, ड्रग्स है, और न्यूप्लेशिया है, ट्यूमर्स है, एमाइलोइडोसिस है, ट्यूबुलर इंटेस्टिस, ये पूरे कॉजेज हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। अब उसके बाद जो है ये कैसा हम जो डायग्नोस कर, सिम्टम्स क्या होते हैं क्रॉनिक किडनी, ये बड़ी सटल चीज है जो आदमी को मालूम नहीं होता कि उसकी किडनी फेल हो रहे हैं। एक तो जो है आदमी को जो है नौसिया रहता, नौसिया का मतलब ये है कि मतली मतली खाना खाने की दुनिया बोलता, क्योंकि केमिकल उसके जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो हमको नॉर्मली एक्सक्रीट करना चाहिए वो बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उससे जो है पूरा आदमी का ऑल्टर्ड चीज़, सेंसोरियम उसका जो है सो हेडेक हो सकता है, उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, रातों में यूरिन पास कर रहे हैं उठ के, स्लीप नहीं आती है बराबर, मसल क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में मैग्नीशियम वगैरह का डिस्टर्बेंस होता है। तो उससे और सीजर्स हो सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब होने की वजह से, ये पूरे सिम्टम्स हैं। तो और इसमें जो रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो सकता है, और जिंजिवल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये देखिए किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को एक्सक्रीट करना। और अगर उसका अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करा तो चीजें बढ़ जाएंगी जिसम में। तो अगर वो ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है जिसम में अगर वो प्रॉपरली जो एक्सक्रीट नहीं हुए, ज्यादा बढ़ गए जिसम में, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है और ड्राइनेस हो सकता है। और ये जो है और पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं हम लोग, तो पेरिकार्डियल प्लूरल रब, पेरिकार्डियल रब हो सकता है। तो ये सब पूरे बीमारियां हैं जो डॉक्टर्स के लिए हम लोग के लिए बहुत अहम है। और यूरिमिक फ्लैप बोलते हैं, इसमें स्मेल भी आती है एक किस्म की, यूरिमिक फीटर बोलते हैं, जो अमोनिया और यूरिन लाइक ओडर टू द ब्रेथ, ये है। तो यूरिमिक फ्रॉस्ट भी है, क्रिस्टलाइज्ड यूरिया deposits that can be found on the skin. So these are very important things you have to know. These are the symptoms and signs of chronic kidney disease. How we diagnose and clinical evaluation of the kidney, care for patients with CKD requires multiple intervention. याद रखिए कि ये हमारा अकेले से नहीं होता है, बल्कि you need a lot of coordination between multidisciplinary, primary care physicians से start होता है, allied health care workers and specialists है, nephrologist finally we refer the patient. तो ये जो KDIGO है जो improve इसका ग्लोबल आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए किडनी फंक्शन में, ये जो गाइडलाइंस है, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर केयर बट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ द फिजिशियंस असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर इंडिविजुअल। हर पेशेंट का एक वो रहता है, फिजिशियन हैज टू प्रॉपर्ली असेस द पेशेंट एंड उसका ये है रिकग्निशन। इसका पहली चीज क्या है, रिकग्नाइज करना कि इंक्रीज रिस्क है सीकेडी का ये पेशेंट को, इसकी शुगर इज नॉट गेटिंग कंट्रोल, दैट इज द रीजन। और मेजर सीरम क्रिएटिनिन टू एस्टिमेट जीएफआर, एक ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम जो है ना, क्रिएटिन सीरम क्रिएटिन को कैलकुलेट करके उससे हम एक फार्मूला होता है जिसके जरिए से हम ये करते हैं। वैसे ही हम मेजर यूरिनरी एल्ब्यूमिन और प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है किडनी डैमेज के, ये पूरे मार्कर्स हैं। यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, हम लोग हर 6 महीने में HbA1c और यूरिनरी ACR करते हैं। ACR इज एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो, ये देखते हैं, चेक करते रहते हैं कि किडनी के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा कहीं। तो और यूरिन के टेस्ट में हमको ये देखना है कि सेडिमेंट में क्या क्रिस्टल्स हैं, क्या कोई स्टोन्स बन रहे हैं, क्या उसको क्या हो रहा। तो यूरिन प्लेन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर क्रिस्टल्स एंड सेडिमेंट। उसके बाद जो है इमेजिंग करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड करते हैं। और सीकेडी कब कब बनेंगे, जब 60, मैं बोला था आपको इज अ कट ऑफ पॉइंट है, यंग पर्सन है, 40 ईयर का एज है। तो इफ इज GFR इज कमिंग लेस देन 60, देन वन हैज टू बी कॉशियस, हाँ इज डेवलपिंग किडनी फेलियर। तो ये चीज का आप जहन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रखिए कि किडनी डैमेज में जो है आपको GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैलकुलेट करना है, एल्ब्यूमिन को कैलकुलेट करना है, यूरिनरी सेडिमेंट को देखना है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को देखना है, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को देखना है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को देखना है। और इसका ड्यूरेशन जो है मोर देन 3 मंथ्स रहा तो इट इज व्हेन देन ओनली यू कंसीडर दिस CKD। तो अब इसका क्या रहता है,
डायबिटिक किडनी डिसीज टाइप 1 और टाइप 2, नॉन डायबिटिक किडनी डिसीज है या किडनी डिसीज डायबिटिक के सर्क्यूमेंट है, ये सब चीजों को आपको देखने का है। उसके बाद मैनेज कैसा करनी है, तो ये जो है, एक तो जो है प्रोग्रेस को रिकवर करना है। अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करेंगे डायबिटीज को, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटिक किडनी डिसीज जो है, उसको हमको वो करना है। बहुत लंबा हो जाता है ये हाइपरटेंशन की, कैसे ट्रीट करें तो किडनी कैन बी सेव्ड, और एनीमिया को कैसा ट्रीट करना सीकेडी में, और बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर्स इन सीकेडी में कैसे ट्रीट करना, एसिड बेस बैलेंस को कैसे ट्रीट करना। हम लोग ये रोजाना हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट्स, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम। सो इसमें जो है तो रिड्यूस प्रोटीन या सबसे पहला एम हमारा ये होना चाहिए कि प्रोटीन आइडियली टू लेस देन 500 मिलीग्राम पर डे। ये दिस इज आवर एम, which is a safe level of proteinuria for most forms of CKD, and slow GFR decline as much as possible. Ideally to about 1 ml per minute per year, which is the rate of GFR decline attributable to the nephropathy of aging. Aging से खुद भी जो है होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, रिकमेंडेशंस क्या है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेट। अब ये जो है दवाइयां हैं, देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, और ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उसके बाद रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक है, डायूरेटिक थेरेपी देते हैं हम, अगर पेशाब नहीं आ रहा तो वो कैसा देना, कितना देना, ये जो डॉक्टर का काम है। कंट्रोल ईच कंपोनेंट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक अगर किसी को सिंड्रोम ओबेसिटी है तो वो करना पड़ता है। ये सब चीजों को जो है, एंटीकोगुलेंट रिलेटेड नेफ्रोपैथी है, सीरम क्रिएटिन को जो है मॉनिटर करते रहना है, अवॉइड मिनिमाइज, ये चीजें हैं, ये देखिए आप। उसके बाद जो है मैं आपको ये जो गाइडलाइंस है 2022 में गाइडलाइन दिए थे, कहते हैं डायबिटीज को कैसे मैनेज करना, इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो है, जो चीज बताना चाहता हूँ, वो आजकल नए नए दवाइयाँ, बहुत अच्छे दवाइयाँ आए हैं, SGLT2 बोलते हैं उनको, इनहिबिटर्स। उनका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। जो आम जो डायबिटीज के दवाइयाँ हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन का रिलीज को, और इंसुलिन के प्रोडक्शन को हेल्प करते, लेकिन और उसके यूटिलाइजेशन को हेल्प करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते। लेकिन ये जो दवाई है SGLT2 इनहिबिटर है, ये जो है इट्स अ नोवेल थिंग, वो जो है इट प्रोमोट्स ग्लूकोज का पैसेज इन द यूरिन, ग्लूकोसूरिया होता है उसमें, और उससे जो है आदमी का वेट कम होता है, आदमी का जो ब्लड प्रेशर कम होता है, किडनी का फेलियर कम होता है। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बात याद रखिए। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पिरामिड को याद रखिए कि कैसा, हाउ टू मैनेज डायबिटीज की इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज लाइफ स्टाइल एंड सेल्फ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट। वेट रिडक्शन है, स्मोकिंग सेसेशन, एक्सरसाइज है, डाइट है, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाना, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। सेकंड स्टेप इज, मैं बोला आपको दवाइयाँ हैं। फर्स्ट जो दवा हम तो डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में मेटफॉर्मिन बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है ये। इट्स द बेसिक फर्स्ट लाइन मेडिकेशन। अब तक आज से 50 साल से यही दवा है बेसिक, जो हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को। विग्वानाइट्स बोलते हैं इसको। ये दिस इज वेरी गुड मेडिसिन, इट रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका यूटिलाइजेशन है इंसुलिन का, उसमें बहुत मदद करता है। अब उसके बाद जो अब जो नई दवाइयां आए हैं, ये इसमें जो है SGLT2 इनहिबिटर, मैं बोल रहा था आपको डॉक्टर साहब, टाइम इज रनिंग आउट प्लीज। तो ये जो है, ये एक बस मैं मैनेजमेंट टैबलेट्स का उसका खत्म करता हूँ। तो फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी है ये याद रखिए आप, SGLT2 एंड RAS ब्लॉकेट बोलते हैं। रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, किडनी में एक हार्मोन का सिस्टम होता है जिसको करना है। उसके बाद GLP-1 पे है, ये भी एक अगोनिस्ट है, ये भी इस्तेमाल करने का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और वैसे जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये पूरे चीजें जो है, लाइपेट मैनेजमेंट, ये पूरे मिलके आप करेंगे तो योर किडनी विल बी सेव्ड। दैट्स इट। This is what I wanted to tell. There are a lot of good things to tell, but there's no time. So if you have any questions, please, you are most welcome. And this just I'm passing to show you that there are a lot of things we do in how to control the metabolic disturbances. Anemia को कैसा treat करते हैं, इसमें एरिथ्रोपोइटिन, आयरन से बल्कि बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन हम देते हैं बाहर से, क्योंकि वो कमी हो जाती है किडनी नहीं होने की वजह से। आप क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू कर सकते हैं। Thank you very much, doctor. Thank you very much, doctor, for enlightening us with a lot of knowledge and how we can prevent ourselves from this chronic disease. There are a lot of questions in line. The first one is, does high amount of protein as taken by the athletics or bodybuilding activities, does it damage kidneys?
देखिए कोई भी चीज अब नॉर्मल नेचुरल है तो ये प्रोटीन जो लोग लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते एज डॉक्टर्स वी डोंट रिकमेंड देम टू टेक दीज थिंग्स एक्स्ट्रा जो है ये चीजें बाद लोग जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेते हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए ये चीजें जो है किडनी के लिए दे आर हार्मफुल दिस इज माय impression. Okay. The second question is, do the children with nephrotic syndrome have kidney problems even when they grow? Sorry, nephrotic syndrome का it's a Yeah. disease जिसमें जो है प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में जी हाँ तो वो उसका जो है आपको उसका इलाज होता है उसके कॉजेस मालूम करना पड़ता है क्यों हो रहा है क्या इज इट ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसीज एसएलई की वजह से है या और क्या उसका कॉज है मिनिमल लीजन बल्कि होता है बच्चों में जो होता है वो उसको स्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं हम लोग तो ठीक हो जाते हैं लोग आमतौर पे तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए कंप्लीट चैप्टर इट्स ए डिसीज ऑफ द किडनी इन विच देयर इज प्रोटीन लॉस इन द यूरिन जी Great, doctor. There is a question and like a request from the sister, how to consult you for consultation? देखिए मैं जो है हॉस्पिटल में हमारे आउटपेशेंट हम लोग का टर्शियरी हॉस्पिटल इज ए टर्शियरी केयर सेंटर तो हम लोग जो है पहले क्लिनिक से आपको रेफरल लेना पड़ता है उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं मेरा आउटपेशेंट आई हैव गॉट इवनिंग ओपीडी ऑन संडेज फॉर कोइटीज and Monday I sit Monday for the areas खैतान परवानिया अब्बासिया ये 3 एरियाज के लिए मैं एक दिन के लिए जाता हूँ हमारे कंसल्टेंट्स पूरे जाते हैं एक दिन के लिए वहाँ पे उसे भी क्लिनिक खैतान में वहाँ पर आप आके मेरे से मिल सकते हो जो ये एरियाज में Thank रहते you, हैं Jyoti. जी All right, doctor. Yeah, out of the topic question, but still the participants are more interested to ask. There is a HPV vaccination for ladies. It has been given for the cancer prevention. Does IDF recommends this kind of vaccination? देखिए जो भी वैक्सीनेशन प्रिस्क्राइब्ड है उसको जरूर लेना चाहिए और खास तौर पे ये यंग बच्चियों में जो है जो वैक्सीनेशंस हैं पैपिलोमा वायरस वगैरह के जो वैक्सीन है उसको जरूर लेना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ जो है सर्वाइकल कैंसर वगैरह के लिए जो जो भी रिकमेंडेशन है जो आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे हमारे पास कुवैत में बड़ा अच्छा सिस्टम है कि दे रिकमेंड यू टू गो एंड टेक फ्री वैक्सीनेशन तो बिल्कुल जो भी रिकमेंडेड है वैक्सीन जरूर लीजिए आप उसको लेना चाहिए जी Thank you, doctor. to go ahead and take vaccinations. Okay. All right. The fifth one is, does enlarged prostate does it affect the kidneys? This state. ऑफ कोर्स हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं प्रोस्टेट का इलाज होना चाहिए prostate can be affected in elderly people as we grow old they become enlarged it is called benign prostatic hypertrophy लेकिन prostate जो है प्रोस्टेटाइटिस बहुत कॉमन है इन्फेक्शन जो यंग लोगों में हो सकता है प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन होता है जिसका इलाज एंटीबायोटिक वगैरह से करना पड़ता है और एक चीज को ये है कि आपकी हेल्दी प्रैक्टिसेस अगर रहे तो ये प्रोस्टेट का बहुत आप कंट्रोल में रहते हैं आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल रहती है लेकिन अगर आप इफ यू आर इंडल्जिंग इन यू नो ड्रग्स और सच थिंग्स देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स तो प्रोस्टेट बहुत कॉमन है और इससे जो है यूरिन रुक सकता है आदमी का उसको जो है आपको बराबर उसका इलाज करवाना चाहिए जी Great, that was very quick response, doctor. और कुछ डिटेल चाहिए इधर सिस्टर कहने से ताकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज 1 और 2 क्या फर्क क्या है इसमें जी जी ये जो है डायबिटीज 1 जो है इसे वो पैदाइशी जो है इंसुलिन की डिफिशियंसी रहती है उन लोगों को तो वो लोग जो है बहुत कम उम्र में शुगर हो जाती है और दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन विदाउट इंसुलिन दे कैन नॉट सर्वाइव क्योंकि उनका पैंक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करता है टाइप 1 डायबिटीज में टाइप 2 जो है वो उसके कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसमें जो है सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स है ओबेसिटी है और कई चीजें हैं जो मिलके अफेक्ट करके आपका जो वो उसको पैंक्रियाज को डैमेज करते हैं तो उससे जो है टाइप 2 होती है इट इज यूजुअली एज लोगों को होती है थोड़े से गुजरने के बाद है जैसा कि 10-15 साल में अगर किसी को होगा तो टाइप 1 डायबिटीज है तो ये है और अलबत्ता जैसे आदमी जरा एज होती है तो वो टाइप 2 डायबिटीज होता है यूजुअली और टाइप 1 में दे आर टोटली डिपेंडेंट टाइप 2 को जरूरत नहीं रहती है इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि इंसुलिन के पास रहता
उसको जो है हम लोग स्टिमुलेट करते हैं और तरीकों से इलाज करते हैं, ताकि टाइप 2 का इलाज आसान होता है। और भी है डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में होती है, और उस बहुत ही एक डिफरेंट बड़ा बिग टॉपिक है वो जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में जिसको होती है, इसमें इंसुलिन देते हैं हम लोग। तो कई किस्म के डायबिटीज हैं इसमें, ये टाइप 1 टाइप 2 जो है बहुत आम है। लेकिन टाइप 1 में जो है कंजेनिटल है, ये जो शुरू से पैदाइशी जो है लोगों को इंसुलिन की कमी रहती है, और उनको दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। टाइप 2 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। उनको जो है आप डाइट से और एक्सरसाइज से और दूसरे दवाओं से इस्तेमाल कर सकते हैं। That's informative. Dr. Saab, still we are running out of time. We can just accept 1 or 2 questions. Is insulin medicine adaptive? What is the meaning of adaptive? I didn't understand this. What is the meaning of adaptive? आदत तो नहीं होती, इंसान को जो है इंसुलिन लेना चाहिए। एक रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में हमारे इंसुलिन के, 0.6 यूनिट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट का जो है, हर इंसान को जो है इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बॉडी खुद सेक्रेट करती है। तो उसको उसकी जो जरूरत कैलकुलेट करते हैं हम, कितना आपका रिक्वायरमेंट है और आपको कितनी जरूरत है उसकी। ये बहुत अहम चीज है, इसको हम करते हैं। ये एक चीज है। और आपको जो प्रोटीन को कम करने के लिए आजकल एस इनहिबिटर्स बोलते दवाइयां हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एआरबीज बोलते हैं उनको, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये 2 दवाइयां हैं जो प्रोटीन को कम करते हैं। वैसे इसके अलावा भी नॉन हाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो जैसा कि वेराकामिन बोलते हैं, उससे भी प्रोटीन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम, यूरिन में कम हो जाता है ये दवाओं से। ब्लड प्रेशर की दवाओं में ये दवाइयां हैं जो जो प्रोटीन यूरिया को कम करते हैं। और बहुत दवाइयां हैं आजकल, तो बहुत अच्छा बेहतरीन आर्मामेंटेरियम है जो हम बराबर आपको फॉलो करना चाहिए कि एल्ब्यूमिन का कैसा कम करना है। यूरिन हम लोग के पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो उससे कम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है उससे, और एल्ब्यूमिन भी यूरिन में कम हो जाता है। जी, Doctor. I believe Faiz Said, I think this is the second question from your side. Since we don't have further question, we can entertain this. What are the type of foods that spike insulin and make us insulin resistant? देखिए मोटापे जो है, मोटापे से क्या होता है कि इंसुलिन के हमारे बॉडी में पूरे स्किन में जो है रिसेप्टर्स होते हैं, जो मोटापे से वो बंद हो जाते हैं। रिसेप्टर्स पूरे खुलते नहीं, उनका मुंह जो है बंद हो जाता। तो उनको अगर आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आप मोटापे को कम करना है, ओबेसिटी को कम करना है, एक्सरसाइज करना है। हफ्ते में जो है 5 दिन आपको आधा घंटा रोज आना चलना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। एक्सरसाइज से और ये जो है इसमें ज्यादा रोल गुजाओं का जो है मोटापा कम करना है। एक्सरसाइज वगैरह से जो है आपका वो फायदा होता है। जी, All right. Jazakallah khair, Doctor. Thank you for giving us a very good enlightening session on this topic, and I hope all our audience they got benefited. We pray to Allah that He grants you a lot of rewards for carrying out this kind of social services work